In this lesson, we are going to learn about theories of punishment. Theories of punishment. First is retributive, deterrent, third is preventive, fourth is expiatory, fifth is reformative. तो 5 तरह की theories हैं punishment की. First है retributive theory. It is a primitive theory. ये एक बहुत पुरानी theory है. Punishment satisfies the feeling of revenge. ज़्यादातर ये revenge यानी कि बदले की भावना पर आधारित थी. In older times, injured person takes revenge by causing injury to other. अगर कोई इंजरी होती थी किसी पर्सन को तो बदले में उस दूसरे पर्सन को भी इंजरी पहुंचा करके वो अपना बदला पूरा करता था. An eye for an eye, a tooth for a tooth was the law. Most criminal proceeding was initiated by injured person and not by the state. जैसा कि आजकल क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होती है वो स्टेट इनिशिएट करता है, बट उस समय क्या था कि इंजर्ड पर्सन के द्वारा ही इनिशिएट की जाती थी. बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड प्राइवेट रॉन्ग. पनिशमेंट एज एन एंड इटसेल्फ. पनिशमेंट क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी का. पनिशमेंट इज रिगार्डेड एज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सोसाइटी बिकॉज सोशल वेलफेयर इज कंसिडर्ड टू बी पैरामाउंट इम्पोर्टेंस. It cannot be considered as an end itself. This theory is gradually losing ground in modern times. Second है deterrent theory. It deters the criminal for committing crime in future. It sets example for others also that who will commit crime will punished likewise. ये एक डर पैदा करता है क्रिमिनल में कि वो फ्यूचर में दोबारा क्राइम ना करे, और समाज में और लोगों को भी ये संदेश जाता है कि कोई भी क्राइम इस तरह का करेगा तो उसको सज़ा इस तरह से मिलेगी. डेटरेंट थ्योरी. इट क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ रॉन्ग डूअर. पर्पज इज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन दी सोसाइटी. क्रिटिसिज्म क्या है. दो दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी बट इट इज नॉट सुटेबल इन ऑल केसेस. समटाइम क्राइम इज कमिटेड अंडर हीट ऑफ पैशन or in extreme excitement when offender loses his mental balance and commit the offense. On the other hand, when offender is once punished, undergoes imprisonment, he is no longer afraid of the same. एक बार पनिशमेंट उसको मिल गई तो फिर वो आगे डरता नहीं है पनिशमेंट से. प्रिवेंटिव थ्योरी. द पर्पस of punishment is to serve as a preventive measures in commission of crime. Punishment preliminary crime like punishing preliminary crime like abatement, conspiracy, attempt, etc. is the prevention to big crime. Preventive theory क्या है. पहले से किसी छोटे मोटे चीज़ों के लिए पहले से ही सज़ा दे करके आगे बड़े अपराध को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव थ्योरी यूज़ की जाती है. In ancient time, offender was prevented from doing crime again by disabling him permanently. For example, the punishment of theft was cutting hands of the offender. In modern times, some other preventive measures are applied like forfeiture of office, suspension, cancellation of licenses, etc. क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी का. आफ्टर सफरिंग पनिशमेंट क्रिमिनल बिकम शेमलेस एंड फियरलेस and becomes professional criminal. Expiatory theory. Punishment is a kind of expiation. Expiation मतलब प्रायश्चित. Punishment is necessary for purification of offender. In the view of Hindu jurists, expiation washes away sin. Expiation क्या है. प्रायश्चित जो है पाप को धो देता है. Criticism क्या है. Suffering must be equivalent to guilt. बट देयर इज़ नो वे और रूल रिगार्डिंग इट. इसमें क्या है. एक्सपिएशन प्रायश्चित में कम इसमें जो है कम सज़ा होती है, लेकिन जो है ज़्यादातर सज़ा गिल्ट यानी उसके जितना अपराध किया है उसके बराबर होनी चाहिए. रिफॉर्मेटिव थ्योरी. द पर्पस ऑफ द पनिशमेंट इज रिहेबिलिटेशन ऑफ रॉन्ग डूअर. रिफॉर्मेटिव मीन्स टू रिस्टोर person back to society as a good citizen. A man is not a born criminal and after all he is human being. One commits crime because he suffers from some disease and that disease must be cured like some other disease. Juvenile justice is good example of reformative theory.
In this, juvenile offenders are kept in reformative houses. They are given education and proper skills too, so that they can earn their livelihood. जुवेनाइल जस्टिस में जो है रिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि किसी को फिर से रिफॉर्म करके सोसाइटी में वापस भेज दिया जाए, जिससे कि वो वापस अपनी वैसी नॉर्मल जीवन जी सके, जैसा कि जुवेनाइल जस्टिस में होता है। क्रिटिसिज्म क्या है? दिस थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू हार्डकोर और रिपीटेड दिस थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू हार्डकोर और रिपीटेड क्रिमिनल्स। ये थ्योरी जो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी सभी पे अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल है या रिपीटेड यानी बार बार क्राइम करने वाला आदमी है, उस पर यह थ्योरी नहीं अप्लाई हो सकती। इफ प्रिजन विल बी वेरी कंफर्टेबल देन इट विल बिकम ड्वेलिंग हाउस फॉर पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। अगर प्रिजन में कंफर्टेबल महसूस करेगा आदमी तो वहाँ पे पुअर और अनएम्प्लॉयड की भीड़ बढ़ जाएगी। विश यू हैप्पी लर्निंग। Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.